Hello student, good morning all. Again welcome to my channel. Today we will start the practical problem of retirement of partner. If you see my first video of retirement of partner, there I have explained all the theoretical part. If any problem, any suggestions, any comments, just write in the comment box. I will give the answer. So without wasting much time, we'll move to the practical problem of retirement of partner. See here, this is the first actual problem, unsolved problem. The balance sheet of Mama, Kaka and Baba profit sharing ratio 4:3:3. It is always important in admission also, in dissolution also, and of course in retirement also. So as I told earlier, first understand the question. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आधा सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन में होता है. So read the balance sheet properly. See, this is the asset they are having before retirement of Mr. Kaka. ठीक है. Now Kaka wants to retire, so before retiring what they have to do, they have to revalue their all asset and the liability. So whatever profit they will earn, they will distribute among all these partners. Because बाबा अगर छोड़ के सॉरी काका अगर रिटायर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, अपना सब हिस्सा जो भी बचा कुचा हिसाब किताब है वो क्या करेंगे, लेकर जाएंगे. So before leaving the organization, what they need to do, they need to revalue the asset and the liability. So these are the asset, these are the liability. See here they have given supplier. Supplier means creditors. Sometimes they will give debtors, instead of debtors they will give customer. So you have to remember that debtors means customer and supplier means creditors. So this is one and the same. You can write here supplier or you can write here creditors. Done. So again loan is also given. General reserve, capital, this Mama, Kaka, Baba's capital is there, and following are the adjustment. You are required to prepare profit and loss adjustment account. This is also called as a revaluation account. ठीक है? Partners capital account and the balance sheet of new firm. So let's begin. See, this is basically our account, profit and loss adjustment account. You can write here revaluation account as I told you in my admission of partners video. Then partners capital account, here debit and credit. See here Kaka. Kaka, why I have give it color? Because this get retire. Next one. The balance sheet as on 1st April 2018. So we'll start the problem. First what we have to do, it is simple procedure as in we have seen in admission. जैसे हम admission में copy paste करते थे, बस यहाँ पे भी हमें क्या करना है, asset copy paste करना है. जिसकी adjustment है वो हमें inner column में लिखना है. So अगर आप adjustment properly पढ़ोगे तो इतने सारे items पे हमें क्या करना है, adjustment. So all this will asset will write inner column. So let's start. Cash 4,500. As you know, cash always write inner column because sometimes we have to pay, sometimes we have to receive. So whatever the cash goes ups and down, we need to write here. The next is the sundry debtors. We always write sundry debtors. This amount 5,000. Don't write this 4,000. Never write 4,500. Inner column. Admission में भी मैंने यही बताया है. Then livestock. Then we have a motor car, furniture and plant. See, all that means every accounting item has an adjustment. So we have written inner column. Done. Now we'll move to the liability side. Liability supplier. See here I have given supplier means creditors 7,000. Loan 5,000. Now what we have to do, general reserve. General reserve we have to divide among the partner just like a admission. So 6250 is given, so we'll decide here, we'll divide here, but before that always write opening balance. So opening balance they have 20,000, 15,000 and 12,250. So right here asset denote credit side, asset debit side. हमेशा असेट में अगर कुछ होता प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, सो विल डिवाइड डेबिट साइड एंड लायबिलिटी शो विच साइड, क्रेडिट साइड. मैं बार बार बोल रही हूँ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से करो, ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे. ठीक है. सो लायबिलिटी शो क्रेडिट साइड, सो दैट इज व्हाई दिस ऑल वी पुट हियर credit side, partners capital credit side. This will go liability side and general reserve will get divided among the partners according to their profit sharing ratio. They mention here 4:3:3. Done.
So posting is done. It's similar as a admission of partner. Now we'll see the again problem. It's over. Now Kaka retire. The share of Kaka in goodwill of the firm valued 2,700. Now whenever they give share of Kaka goodwill valued, that means valued, whenever they use valued, इसका ही मतलब होता है goodwill raise. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अब ये कहाँ से आया मीन्स वैल्यूड. सो वैल्यूड का ही मतलब होता है रेज. एंड रिटायरमेंट में रेज ही एंट्री हमें करनी है. ब्रिंग तो होगी नहीं बिकॉज न्यू पार्टनर तो आया नहीं है. ब्रिंग कौन करता है, गुडविल लाता कौन है, नया पार्टनर लाता है. लेकिन यहाँ पे नया पार्टनर थोड़ी कोई है, यहाँ तो पुराना पार्टनर ही छोड़ के जा रहा है. सो ऑलवेज इन रिटायरमेंट रिमेंबर दैट गुडविल रेज and all you know raise entry. So see here, who raised the entry? See here again, share of Kaka. Now here only we have to raise the Kaka share 2,700. So goodwill account debit to Kaka 2,700. They mention there only काका जा रहे तो वो गुडविल अपना काका ही सिर्फ रेस करेंगे. ठीक है, being goodwill raise. Now they have not given further goodwill write off. अगर गुडविल राइट ऑफ होता तो बताओ क्या होता. अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. बस राइट ऑफ होता तो यही एंट्री है ना रिवर्स हो जाती, गुडविल क्रेडिट में जाता और कंटिन्यू पार्टनर मामा और बाबा डेबिट हो जाते, तब काका नहीं. मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा है राइट ऑफ हमेशा कंटिन्यू पार्टनर करते हैं. ठीक है, बट इन दिस प्रॉब्लम दे हैव नॉट मेंशन कि गुडविल राइट ऑफ हुआ है. सो विल पास ओनली वन जर्नल एंट्री. सो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एडमिशन में भी. अब यहाँ पे गुडविल एक ही है. सो गुडविल हमें लिखना होगा. अगर दो गुडविल होते राइट ऑफ होता तो गुडविल डेबिट और गुडविल क्रेडिट चला जाता. बट यहाँ पे गुडविल के लिए कोई है ही नहीं. सो वन एंट्री विल goodwill and second effect will go kaka capital. So goodwill का लिखते हैं हम हमेशा. Of course goodwill we always write asset side. So we have to write goodwill asset side and here we have to write kaka capital. See, credit side. See, by goodwill. काका केस में गुडविल का नाम, गुडविल केस में काका का नाम. So 2,700. Then and next effect will go goodwill 2,700. अगर राइट ऑफ होता तो गुडविल एक डेबिट एक क्रेडिट हमारा कट हो जाता. देन एडमिशन ऑफ पार्टनर. देखो ये आपको ट्रिक मेरी समझ में आई होगी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. दिस वन डन. फर्नीचर डेप्रिसिएट 10%, मोटर कार 12.5%. सी यहाँ पे मैंने लेकर आई हूँ आपके लिए एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट तो हो गई. ठीक है, फर्नीचर डेप्रिसिएट, तो फर्नीचर कहाँ है हमारा यहाँ पे और मोटर कार कहाँ है यहाँ पे. तो ये दोनों का डेप्रिसिएट करना है. पहले फर्नीचर का करते हैं हम लोग 10%. ठीक है, सिंपल है. 10% से वन ये कट करो 10. So 1750 depreciation always minus, so minus करो. Now what will happen again, next will motor car. See here motor car 12.5, तो 4000 का 12.5 हमें निकालना है. It comes 500, so minus करो. So now second effect इसका और इसका दोनों का second effect कहाँ जाएगा. Of course now we have only two accounts left. बैलेंस शीट में तो किया हमने इफेक्ट. अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा ही नहीं. यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दिया है क्या, नहीं. सो व्हाट लेफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, उसको ही बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो दिस विल गो विथ साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. व्हाई डेबिट साइड, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज a nominal account. And what show nominal account formula, debit the expenses and credit the इनकम. अभी आपका अच्छे से ये लर्न हुआ होगा. एडमिशन में मैंने हर प्रॉब्लम में ये बताया है. ठीक है, सो दिस इज एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन लॉस हो गया उनके लिए. सो दे हैव रिटर्न डेबिट साइड. We'll move to the next adjustment. Livestock appreciate 10% and plant 20%. Livestock एक यहाँ पे है और plant यहाँ पर है. चलो स्टार्ट करो. Livestock appreciate हुआ है मतलब अच्छी बात है. ऐड होगा इसका 10%. सो ऐड करो, देखो बराबर से ऐड हो गया. सेम अबाउट प्लांट. प्लांट की भी वैल्यू 20%. हियर दे हैव गिवन 20%. ठीक है, सो बोथ आर गुड थिंग फॉर द फर्म, इनकम फॉर द फर्म. सो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट अब कहा जाएगा ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट मींस इनकम. सो ये तो इनकम हो गया, उनकी प्राइस बढ़ गई वैल्यू असेट की. सो इट कम्स क्रेडिट साइड. देन
नाउ इट्स सिमिलर एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेम ऐसे ही था ना, हमने ऐसे ही किया था. द प्रोविजन 2000 टू बी मेड फॉर कॉम्पेंसेशन. ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. प्रोविजन 2000 मेड फॉर अ कॉम्पेंसेशन, मतलब क्या, इन्होंने कभी एक बार कभी तो प्रोविजन की थी 2000 की, है ना, कुछ तो क्लेम आया होगा और तब उन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि, और प्रोविजन की होगी. सो प्रोविजन मतलब आउटस्टैंडिंग. सो वन इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज दे हैव टू पे. ये उन्हें पे करनी है, उन्होंने प्रोविजन करके रखी थी, कोई तो एक क्लेम था उसके लिए. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा हमारा, सी, हमें पे करना है कभी ना कभार, तो हमारे लिए तो लॉस ही है. सेम एक आउटस्टैंडिंग, एक आप एडमिशन का अगर प्रॉब्लम देखा होगा, तो एक एडमिशन में भी उन्होंने दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी समथिंग, है ना. तो सेम हमने यही इफेक्ट किया था. दिस इज एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. सो दिस इज अ डेबिट साइड, एंड future है, that means they have to pay, so we'll write liability side. So two effect done. Now RDD no longer necessary. बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब क्या है. अब इसका मतलब समझ कर लो कि RDD is no longer necessary. तो पहले डेटर्स कितने थे, 5000. देखो मैं आपके सामने बैलेंस शीट सी, पहले कितना था डेटर्स, 5000, फिर हमने से उसमें से माइनस किया था, है ना. लेकिन अब उन्होंने बोला कि नो, वी डोंट रिक्वायर्ड आरडीडी, सब अच्छे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड. सो जितना हमें मिलना था उतना ही मिलने वाला है. ठीक है. तो हमारा तो फायदा हो गया है. और कितने का फायदा हुआ है, 500 का. क्योंकि अगर आप प्रीवियस आपकी देखोगे, सी, 500, हमने सोचा था कि 500 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, बट फॉर्चुनेटली उन्होंने क्या बोला है कि आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, ऑल डेटर्स आर गुड. इसका ही मतलब होता है ऑल डेटर्स आर गुड्स. चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस ये भी 500 हमको फायदा होने वाला है. सो दिस 500 वी हैव रिटर्न क्रेडिट साइड. समझ में आया. और यहाँ पे हमने क्या किया, एज इट इज लिखा, 4500 नहीं, पूरे के पूरे पैसे मिलने वाले हैं हमारे पास. ठीक है. So you can write directly outer column 5000. Done. So I hope आपको समझ में आया है. Now we'll move to the next. The amount payable to Kaka should be transferred to his loan account. नाउ जो भी अब काका अब रिटायर हो रहे हैं, तो अब जो भी पैसा बचा है वो हमें ट्रांसफर क्या करना है, लोन अकाउंट में. अच्छा, तो अब इसमें से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पढ़ाती हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ाया, क्योंकि तब आप कंफ्यूज हो जाते थे. ठीक है. सो अभी यहाँ पे हमें करना है. नाउ हु इज गोइंग टू रिटायर, मिस्टर काका इज गोइंग टू रिटायर. तो अब वो तो क्या करेंगे, भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरा हिसाब दे दो. लेकिन यहाँ पे तीन एक ऑप्शन है, पार्टनर्स इन्हें कैसे पेमेंट करेंगे. सबसे पहला पेमेंट ऐसे होगा कि एक तो अगर कैश फर्म के पास है, तो क्या करेंगे बाकी के पार्टनर, बोलेंगे ओके ठीक है काका, आप आपकी पूरे के पूरा हिसाब लेकर जाओ. तो उनको वो किस में फॉर्म में पे करेगी, कैश के फॉर्म में पे करेगी. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उनके पास कैश थोड़ी अवेलेबल है, तो वो दूसरा ऑप्शन एक ले सकते, काका को बोल सकते कि काका प्लीज अब थोड़े से पैसे अभी ले लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल काका को 10,000 देने हैं, वो जा रहे रिटायर हो रहे हैं और काका को 10,000 देने हैं, लेकिन फर्म के पास 10,000 तो है नहीं. तो फर्म के पास कितने हैं, सपोज यही अमाउंट लेते 4500. तो वो क्या बोलेगे फर्म, मतलब मामा और बाबा क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि काका एक काम करो, अभी आप 4500 ले लो, और बचो हुए जो रहेंगे 5500, वो हम आप क्या करो, लोन बोलकर आप ले लो. मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करेंगे, पे करेंगे, जैसे जैसे पैसे आएंगे हम आपको पे करेंगे. ये होता है सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि ठीक है, अब तो उनके पास पैसा ही नहीं है काका के पास फिलहाल देने के लिए, काका को देने के लिए. तो वो काका को रिक्वेस्ट करेंगे, काका फॉर अ टाइम बीइंग आप क्या करो, हमें एज अ लोन दिया है, ऐसे बताओ, हम आपको ये लोन आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में या जैसे जैसे पैसे आएंगे पे करेंगे. सो आपको कभी ये पूछ सकते हैं, ये या ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा. मैक्सिमम 95% यही ऑप्शन आता है. 95%, 5% में ये और ये आता है. इस लास्ट प्रॉब्लम में जो रिटायरमेंट का है उसमें एक ये ऐसे पूछा है उन्होंने. ठीक है. तब हम देखते हैं. तो ये आपको याद रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हमको जो पार्टनर्स रिटायर होता है, वी नीड टू पे देम ऑल हिज ड्यूज. बट इफ
firm does not have cash, so what they will do, they will request as a retired partner ki treat as a loan. If they have a cash, little cash, they will pay little cash, half by cash, half by loan. If they have a much cash, so they can pay fully by cash. अब यहाँ पे काका को हमें किससे करना है पे, हमारे पास कैश नहीं है, ना ही आधी है ना ही पूरी है, तो पूरा का पूरा हम काका का जो भी ड्यूज है एज अ लोन बोलकर लायबिलिटी में बताएंगे। और लायबिलिटी में बताया है इसका मतलब फर्म को पे करना है फ्यूचर में काका को जैसे जैसे पैसे आएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सो विल सी नाउ ऑल इज डन, ऑल एडजस्टमेंट डन। काका का जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हमें काका का फाइंड आउट करना पड़ेगा, बैलेंस कितना आया है, लेकिन उसके लिए पहले ये क्लोज करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विच साइड सी हियर। यस ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड यू कैन सी 4500 500 इधर से ही पता चलता है कि ये साइड हेवी है। सो दिस माइनस दिस 6250 माइनस ये हमको सब माइनस करना है। अब एडमिशन में डिसोल्यूशन में आपको समझ में आया है कैसे करना है। सो वी गेट द बैलेंस 2000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। Now this 2000 we need to divide among all the partners. Now why all partners? एडमिशन में तो 2 ही पार्टनर्स थे, यहाँ पे 3 पार्टनर क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये काका थोड़ी छोड़कर जाएंगे ये इनका प्रॉफिट, इस पे ये सब असेट पे उनका भी तो हक था, सालों साल उन्होंने भी मेहनत की है। तो अब जब फर्म रिवैल्यूड हो गई है तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पे भी काका का हक है, तो ये डिवाइड तीनों में होगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है एडमिशन में सिर्फ दोनों में डिवाइड होता है, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है लेकिन तीनों में होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो क्या है 4:3:3। नाउ विल क्लोज फर्स्ट काका अकाउंट। देखो काका की ये टोटल ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या, काका के 15,000 जो कैपिटल है वो लौटाने हैं, फिर काका को थोड़ा जनरल रिजर्व का हिस्सा मिला था वो लौटाना है, फिर काका का गुडविल जो है हिस्सा वो लौटाना है, फिर काका को 600 ये भी उन्हें करने हैं। तो टोटल काका का हिसाब कितना बनता है 20,175। तो चलो यहाँ पे कुछ माइनस करने हैं ही नहीं, तो पूरा के पूरा 20,175 आएगा। बट इसको नाम क्या देंगे, क्या बोला एडजस्टमेंट में कि क्या लिखो, काकास लोन लिखना है। आया समझ में? अब यहाँ पे हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डेबिट है तो बैलेंस शीट क्रेडिट, बैलेंस शीट की क्रेडिट मतलब क्या, लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो वो बाद में करते हैं, पहले हम ये मामा और बाबा का भी क्लोज अकाउंट कर देते हैं। सी पहले बाबा का करो, बाबा सब किसी का बैलेंस डेबिट माइनस करने जैसे है ही नहीं है। ठीक है, नाउ सी द डिफरेंस, हमने काका को या लोन बताया बट इनको बैलेंस बताया बिकॉज दे आर अ कंटिन्यू पार्टनर, ये अभी भी पार्टनर है। ठीक है, सो इनका बैलेंस एज इट इज कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब देखो हमको ये ट्रांसफर करना है और ये दोनों भी ट्रांसफर करने हैं, बट ये दोनों किसके हेडिंग में जाएंगे, कैपिटल के हेडिंग में जाएंगे सी, और काका अलग से जाएगी बिकॉज अब काका पार्टनर्स नहीं है, ये न्यू बैलेंस शीट है, तो अब यहाँ पे काका हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ही काकाज लोन विल राइट हियर। इसका मतलब क्या, अब बैलेंस शीट को काका को कितना पे करना है 20,175। जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे मामा और बाबा क्या करेंगे, काका को पे करेंगे। दस बैलेंस शीट गेट टैली, वेरी सिंपल। ठीक है, सो इसमें सिर्फ हमको यही नया है, बाकी तो ये सब हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, सी कैश अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में कैश लिख दो, अब इनर कॉलम में कुछ था ही नहीं तो डायरेक्टली नाउ शिफ्ट हियर एंड विल क्लोज द बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आया तो पहले एडमिशन करो, एडमिशन करोगे तो ये बहुत इजी जाएगा। थैंक यू सो